stability is something which is stagnant, stable, constant, and there is no movement, mostly vertical in the sense. There is no vertical movement, either ascending or descending. That will be called as stable condition or the stability in the sense. Here I am talking about the stability of the atmosphere. Instability means, instability is the position of certain things which is not stagnant, constant, or not stable, and generally it moves either in vertical direction or it in the mode of descending air. If there is the ascending or the descending of the air, then we can say that that air is the unstable air, and it is the one of the important characteristics of the atmosphere that causes for the different form of the condensation and precipitation. The rainfall, cloud formation, condensation, dew, fog, snowfall, hailstorms, sleet, all these form of the condensation and precipitation is generally dependent over the stability or the instability of the atmospheric conditions. मैंने ये कहा कि स्टेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है एटमॉस्फेयर का जिसमें एटमॉस्फेयर का वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है, चाहे वो डिसेंडिंग हो, ऊपर से नीचे की ओर हवा नहीं आती है, या नीचे से ऊपर की ओर हवा वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करती है. यह कंडीशन स्टेबिलिटी की कंडीशन. इनस्टेबिलिटी की कंडीशन में if the air is moving either in the form of ascending air or in the form of descending air, then we can say that there is the unstable atmospheric conditions. और इसका संबंध मौसम की घटनाओं से है. अगर हवाएं स्टेबल है, उसके अंदर वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि हवाओं में बादल का बनना, बारिश का होना, फॉग, स्लीट, precipitation, hailstorm, or the different form of condensation and precipitation मुश्किल है. यही रीजन है कि बहुत सारे ऐसे इलाके जो अर्थ सरफेस पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में है, most of the part of the desert which are located in the subtropical belt of the earth surface, subtropical high pressure belt of the earth, causes the unstable conditions, and there is no any vertical rising up of the air, and that's why mostly the stability of the atmosphere is recorded in the harsh latitude where the most of the desert of the world is located. Because of the restrictions of the vertical movement, air is descending from above to the ground, and the temperature rises and it does not cools down. That's why condensation does not take place. But in terms of the, you have to be aware, अगर कहीं ये सवाल अगर आता है जनरली कंपटीशन में, तो आप इसको आंसर कैसे करें कि what is the stability of the atmosphere, what is the instability of the atmosphere. तब आपको ये कहना होगा कि stability of the atmosphere means the restrictions of the vertical movement of air from either from in ascending order or in the form of descending order is called as the stability of the air, and it happens when the surrounding air are relatively cooler in compared to the rising air. That is the unstable conditions.
when the surrounding air is relatively warmer than the ascending air, अगर आसपास की हवाएं गर्म हो और जो हवा ऊपर उठ रही है वो ठंडी हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्टेबल कंडीशंस, क्योंकि आसपास की हवाओं के गर्म होने पे और जो हवा ठंडी है उसके ठंडे होने से हवा ऊपर उठ ही नहीं सकती। हवा को ऊपर उठने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि आसपास की जो सराउंडिंग एयर्स है ये कूलर हो और जो राइजिंग एयर है ये वार्मर हो, तब हवा वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर उठेगी और तब जाकर जो है इनस्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी, तब आपका रेनफॉल, फॉग और प्रिसिपिटेशन होगा और इनस्टेबिलिटी की कंडीशंस कहलाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हवा जो राइजिंग एयर है, the vertical movement of air is causes with the relations to the dry adiabatic lapse rate, and the surrounding air temperature is denoted through normal lapse rate. So in terms of relationship between the normal lapse rate, that is also called as environmental lapse rate, and dry adiabatic lapse rate के आपस में क्या रिलेशंस है, इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर इट इज स्टेबल और द इनस्टेबल। यस अतीक नवाज। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, very good question. At equatorial region, we know that the sun shines vertically overhead at equator. Sun rays is at 90-degree angle at the equator, and the air get heated by the ground radiations, and the heat of the air, the rising air is more heated and it moves in upward direction, and because it lightens, its weight loses, it get the kinetic energy, and it weight loses, it becomes lighter in compared to the surrounding air, and it moves in upward directions and becomes unstable and causes rainfall, daily rainfall in the equator. That is the unstable conditions of the atmosphere. So how can we understand about whether the rising air has lower temperature or more temperature in compared to the surrounding air? हमें ये कैसे समझ में आएगा कि जो एयर ऊपर उठ रही है, उठने की कोशिश कर रही है, उसका तापमान हल्का है या तापमान कम है या ज्यादा है? जो उसकी सराउंडिंग का एयर है उसका तापमान जो है ज्यादा है या कम है? हमें कैसे समझ में आएगा? हमें समझ में आएगा, we can understand it through the means of the comparison between the dry adiabatic lapse rate and normal lapse rate. Dry adiabatic lapse rate is generally constant. It is 10 degrees Celsius per 1000 meter. If the air is moving in upward direction, its volume changes and it expanded, and because of the expansion of air, the temperature decreases at the rate of 10 degrees Celsius per 1000 meter. And if the dry adiabatic lapse rate is more in compared to the surrounding air temperature, that is the normal lapse rate. If the normal lapse rate is less and dry adiabatic lapse rate is more, then we can say that the air will rise. अगर आसपास का तापमान, normal lapse rate means the rate of the decrease of temperature with 1 degree Celsius per 165 meter, or you can say that 6.5 degrees Celsius
1000 मीटर। सपोज करो कि अगर यह 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर आपका कांस्टेंट है, और राइजिंग एयर का जो रेट ऑफ डिक्रीज है 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के रेट से अगर कूल हो रही है, तो वहां पे स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी, क्योंकि 1000 मीटर हाइट पे, यस अतीक, सूरज, यह राइट, unstable air will create more clouds because it will be cools down and condensation point will be reached. Here I wanted to make you understand about the how can we be able to understand which parcel of air is stable and which parcel of air is not stable. The surrounding air, which is being calculated in terms of normal lapse rate, if the rate of decrease of temperature is 6.5 degrees Celsius per 1000 meter of the surrounding air, that is lesser in compared to the dry adiabatic lapse rate, that is 10 degrees Celsius per 1000 meter. At the 1000 meter height, suppose 40 डिग्री सेल्सियस अगर कोई एयर का तापमान है, 1000 मीटर हाइट पे अगर आप पहुंचती है वो आपका जो है एयर, जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका नॉर्मल लैप्स रेट के अनुसार जो सराउंडिंग एयर है उसका तापमान कितना होगा? दैट विल बी 33.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो एयर राइज अप हो रही है, वर्टिकल हो रही है, उसका ड्राई एडियाबेटिक रेट लेफ्ट से कूलिंग जो हो रहा है उसका तापमान कितना है? दैट इज द 30 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर के हाइट पे। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज लेस देन द नॉर्मल लैप्स रेट at the 1000 meter height, and there is the 33.5 degree Celsius of the temperature of surrounding air and 30 degrees Celsius of the temperature of the rising air at the 1000 meter of the height. At that position, the air will be stable. क्योंकि राइजिंग एयर का तापमान कम है और सराउंडिंग एयर का तापमान ज्यादा है। अगर राइजिंग एयर का तापमान अगर कम है, जो एयर अगर उठ रही है ऊपर, उसका तापमान, उसका टेम्परेचर अगर कम हो और आसपास के एयर का तापमान अगर ज्यादा है, तो वो एयर नीचे की ओर डिसेंड करेगी, वो कभी फर्दर ऊपर उठ नहीं सकती जब तक कि आसपास के तापमान कूल न हो। और राइजिंग एयर का तापमान जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक वह एयर अपने आसपास के एयर से ऊपर नहीं उठ सकती है, उसका गर्म होना जरूरी है। और नॉर्मल लैप्स रेट से इसका जो है, अगर सपोज करो इनस्टेबिलिटी के कंडीशंस में, इफ द एयर, पार्सल ऑफ एयर एंड इट्स टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स रेट इज more in compared to the dry adiabatic lapse rate, then at that conditions the air will be unstable. Agar rate of cooling zyada hai, sometime if there is the 10 degree or the 11 degree Celsius or 12 degree Celsius per 1000 meter, sometime it happens that the normal lapse rate changes with the rate of 11 degrees Celsius per 1000 meter, and dry adiabatic lapse rate, that is the 10 degrees Celsius per 1000 meter, that is constant. Suppose there is the 40 degrees Celsius of the air at the ground and it is moving in upward direction. At 1000 meter of the height,
the rising air will be comparatively warmer in compared to the surrounding air, because its temperature will be 30 degrees Celsius with the subtraction of 10 degrees Celsius at the 1,000 meter of the height. And the rising air and the surrounding air will have the 29 degrees Celsius temperature. तो आसपास के हवाओं का तापमान कम है, दैट इज 29 डिग्री सेल्सियस है, और जो एयर ऊपर उठ रही है उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है. तो राइजिंग एयर ज्यादा गर्म है सराउंडिंग एयर से, इस वजह से यह ऊपर की ओर उठेगी और वो हवा जो है इनस्टेबल हो जाएगी और उसके अंदर इनस्टेबिलिटी की कंडीशंस होगी, एंड दैट विल बी फर्दर causes for the fog, dew, frost, rainfall and the other form of precipitation. तो स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी का कंडीशंस आपका ये पता होना चाहिए कि राइजिंग एयर कूलर है सराउंडिंग एयर से या राइजिंग एयर वार्मर है सराउंडिंग एयर से. यस अतीक. Sorry, I'm not able to understand. Yes, yes. Yeah, because of the relationship between the normal lapse rate and dry adiabatic lapse rate, then we can say that the whether that air will be stable or the unstable. लेकिन जनरली हमने क्या देखा कि जो राइजिंग एयर है आपके इक्वेटोरियल एरियाज पे, they are comparatively warmer in their surrounding area. That's why it moves rapidly in a vertical direction, and later on it further cools down at the temperature and the condensation takes place. But at the areas of the heat, high temperature, desert area में temperature high है, लेकिन ऊपर से हवा जो है वो स्टेबल है, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, डिसेंड हो रही है. इस वजह से वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद भी इवन द एटमॉस्फेयर में कहीं कहीं आपके ह्यूमिडिटी होने के बावजूद भी कंडेंसेशन नहीं हो पा. और यही वजह है, जैसे कि आप देखते होंगे वेस्टर्न घाट पे, जैसे मानसून का जो रेनफॉल है एट द windward side of the western ghat, we see that the rising air sometime the mechanical reason becomes the causes for the rising of air. कभी कभी फोर्सफुली हवा ऊपर उठ जाती है मैकेनिकल फोर्स के द्वारा, हवाओं के फोर्स के द्वारा, जैसे फ्रंट के या टॉर्नेडोज के फॉर्मेशन के बाद. दैट इज द मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी. समटाइम माउंटेन बैरियर आ गया, ओरोग्राफिक बैरियर आ गया रास्ते में, it becomes the force for the upward movement of the air in terms of the rising directions. Because of the orographic barrier, we see that the windward side of the western ghat causes for the rising of the air in a vertical directions, and air causes for the rainfall, heavy rainfall, because it has the moisture, that is the moisture laden wind, and humidity is more because it is coming from the oceans, and that causes the rainfall in the windward side of the western ghat. But in the leeward side of the western ghat, however, the certain amount of moisture is there, but there is the restrictions of the upward movement of the air due to latent heat of condensation. It energy releases and it descends down in the down as a form of downstream. ये ऊपर से नीचे की ओर आती है. And because of the compression of the air, contraction of the air does not got saturated, and the heat increases, and it requires more humidity. अगर heat बढ़ जाए हवा का, तो उसकी humidity capacity बढ़ जाती है.
और उसको और मॉइस्चर चाहिए होता है ताकि वो कंडेंस कर सके और सैचुरेशन हो सके उसमें। यही वजह है कि आपके डिसेंडिंग एयर जो हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है causes the instability and does not occurs the rainfall in the leeward side of the western. So sometimes mechanical instability or the cyclonic instability is also possible. And that occurs in the subpolar region of the world, that is subpolar low pressure belt, where the mechanical instability causes because of the front formation. That will comes in the upcoming chapters, and we will discuss in the detail about the front, jet stream, and the other cyclonic and anticyclonic air circulation. Okay, we will proceed for the next section, next unit. Stability and instability, we will discuss more in the upcoming chapters of the condensation and precipitation. Here I will pause of that sections, and the first unit we will revise later on. We are moving towards the second unit of our studies, that is the temperature, pressure and the wind circulation. Temperature, लोग कहते हैं यार टेम्परेचर बढ़ गया है. Yes, Atik. Atmospheric density is proportional to the atmospheric height. Hello, what do you want to ask? हाँ, अगर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो एयर डेंसिटी जो है कम होगी, मासेस विल बी सेम, क्योंकि किसी निश्चित वॉल्यूम में जो मासेस होता है that is called as the density of the air. कोई निश्चित वॉल्यूम है, जैसे कि अगर सिलेंडर में एयर रखोगे तो डेंसिटी उसकी जो है ज्यादा है. सिलेंडर अगर ब्लास्ट हो गया तो हवा एक्सपेंड हो गई, सिलेंडर से एलपीजी गैसेस अपने बाहर निकल गए, तो अलग अलग जगहों पे वो फैल जाएंगे. वो तो कंप्रेस्ड है ना, जैसे सीएनजी भी है, वो तो कंप्रेस्ड है. कंप्रेस्ड उसको अंदर हवाओं के अंदर जो द एयर इज और द गैसेस इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर. प्रेशर में या उसमें बस यही होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस को कम कर दिया जाए, उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस अगर कम हो गए तो आपका कंप्रेस्ड हो जाता है. तो सॉलिड में है कि उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता ही नहीं, लेकिन हवाओं के अंदर तो रहता है, या आपके जो है वो लिक्विड के अंदर भी है. यस. हाउ? Okay. Yeah. It's comparatively low. Yeah, very good question. I think that is called as the inversion of temperature or the thermal inversion. When the excessive cooling of the ground is there due to the excessive radiations of the long wave terrestrial radiation, ground cools more. And we know that the nature of atmosphere is it receives more energy from the ground radiation. When the ground is cooler in comparison in the night, because the winter season the night is longer. That's why in the winter season the ground or the surface of the earth excessively cooled, and so the air which is above the ground got the temperature from the ground and it becomes cooler, but the air which is above the height is comparatively warmer. And here we see that the
there is the certain kind of the thermal inversion or the inversion of temperature takes place, and the occurrence of the instability also causes fog. Fog rapidly forms, dew formed, frost is there because of the certain kind of the thermal variations, temperature variations, excessive cooling of the ground. The air which comes into the ground also get cooled, but the air which is at higher height is comparatively warmer in compared to the air of the lower height. And when it mixes to each other, the instability is recorded, and dew, fog, sleet, as well as the frost form. We will discuss in detail this section of the temperature. Okay, I wanted to proceed further for second unit, and I will start it in tomorrow. कल मैं second unit को start करूंगा. तो any other question? क्योंकि temperature और एक बात और मैं आपसे कहूं कि जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं की है, प्लीज आप उसको अपना पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाला जो सेक्शन है टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, ये सब एक दूसरे से लिंक है. अगर आप क्लास मिस करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा. अगर मान लीजिए अगर आपने क्लासेस मिस कर दी पुरानी, नेचर एंड स्कोप और ये तो आपको समझ में मान लो कि आ गया, या एटमॉस्फेयर कंपोजिशन और आपका जो है ये आ जाएगा समझ में, स्ट्रक्चर. लेकिन अगर इंसुलेशन जिन्होंने मिस किया है तो टेम्परेचर उनको परेशानी हो. इंसुलेशन का सेक्शन जिन्होंने मिस कर दिया तो टेम्परेचर को समझने में दिक्कतें हो. जिन्होंने टेम्परेचर नहीं समझे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं समझ पाएंगे, और जो लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं समझ पाएंगे तो विंड का सर्कुलेशन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, फ्रंट, ये समझ में नहीं आए, क्योंकि ये लिंक है, एक दूसरे से लिंक है कंसेप्ट. इसलिए मैं शुरू से कहता था कि आप लोग क्लासेस रेगुलर किया कीजिए, क्योंकि ये एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से इंटरलिंक्ड है. एक नहीं समझ में आने पे आगे का मुश्किल हो जाता है समझ में आना. ओके सर, फर्स्ट यूनिट का वो नोट्स भेजेंगे आप? फर्स्ट यूनिट का नोट्स आपको मिल जाएगा, और आप वीडियोस हमारे पुराने सारे मौजूद हैं, आप उसको देख लें. ओके सर. यूट्यूब पे है, आई विल शेयर, एंड आपको जो है पुराने सारी क्लासेस की वीडियोस मौजूद हैं. ओके सर. सर रिटन टास्क करके बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं और अपना सोने की कोशिश कर रहे हैं. बस आपने लिंक कर दिया, जुड़ गए और उसके बाद सो रहे हैं. अटेंशन उनका है नहीं. इसमें बहुत सारे बच्चों का ये आदत बन गई. यस सर, रिटन टेक्स्ट होगा सर, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सर पढ़ने में और समझने में. जी बताएं. नोट्स क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं सर, समझ में नहीं आ पाए सर. अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? रिटन टेक्स्ट अगर होगा हमारे पास में तो उसे समझने में आसानी होगी सर. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं सर, हमारे समझ में नहीं आ पाए सर. ये कौन सा आप बोल रहे हैं? सर मैं जुनैद. आपने क्लास किया रेगुलर? जी सर. सर रेगुलर तो नहीं करा, कुछ सर मेरी क्लासेस मिस हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम. अच्छा, तो आपने फिर से वीडियो देखा? सर वीडियोस मैंने थोड़ी सी देखी थी, उसके बाद सर मुझे वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि और भी क्लासेस रहती हैं सर. कभी जब वक्त उनकी भी सर में तो ऐसा तो है नहीं कि आपको अभी देखना है. जब भी आपको वक्त मिला तो आपने देख लिया. वो तो सर इंशाल्लाह मैं देख ही लूंगा सर, आपने डाल रखा है. लेकिन सर जो रिटन टेस्ट होगा सर उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी. वाइवा वोसी भी होगा, रिटन भी होगा. आप जब कह रहे हैं तो रिटन भी कर लेंगे फर्स्ट यूनिट का, ताकि आप समझ में आ जाए. जी और रिटन मटेरियल भी. अच्छा, रिटन टेक्स्ट चाहिए, वो भी मिल जाएगा. किताबें हैं आपके पास? नहीं सर, किताबें नहीं है बिल्कुल.
सर एनसीईआरटी किताब की नहीं सर, सर कोई सी भी किताब कौन नहीं। क्या सी पढ़नी दुकानें नहीं खुल रही हैं उधर? आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर अलीगढ़ में ही रहता हूँ सर मैं। अलीगढ़ में रहते हो बेटा, फिर भी जो है तुम ऐसी बात कर रहे हो यार, किताबें नहीं है। शमशाद में बैठकी होती है, आजकल तो ढाबे भी खुल रहे हैं यार। किताबों की दुकानें आपकी पूरी अलीगढ़ में पड़ी हुई है। सर आप डिपार्टमेंट में आ जाते, वहां मैं सर दे बुक कौन देता सी बढ़िया किताबें। लगती है? चलिए सर डिपार्टमेंट आ जाऊंगा, मैं डिपार्टमेंट से आके ले लूंगा आपसे। सर बुक या कौन सी जाके ले? शमशाद में भी खरीद सकते हो, और भी बहुत सारी दुकानें हैं यार। बस आपसे आके सीरियसनेस ले की लूंगा जरूरत सर मैं होती है डिपार्टमेंट पढ़ने में। के लिए। इंटरनेट से भी आप देख सकते हो, सीरियसनेस की जरूरत होती है। किताबों सर बुक को जो है आपको मिल जाए। चलिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपकी सारी किताबें, मटेरियल जब थैंक यू अगर सर। कहेंगे तो जो है। लेकिन मुझे थैंक यू। अफसोस हो रहा है कि ज्योग्राफी आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, तो फिजिकल ज्योग्राफी की किताब तो ली होगी बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में। नो सर नहीं यस ली सर। सर। सर सारा और लाइब्रेरी से उसमें चला है क्या, सर, लाइब्रेरी खुली उसमें होती नहीं थी है? हम लोग वहाँ चले जाते थे, लाइब्रेरी से कर लेते थे। तो यार टेक्स्ट बुक कुछ खरीद भी लो, एनसीईआरटी की किताबें ही खरीद लीजिए। ठीक है सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ये अब बताएं। जी जी। इसका मतलब ये है नेट रेडिएशन में कि एटमॉस्फेयर जो है जनरली बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, लेकिन ये डिफिसिट कंडीशन में होता है। इसके अंदर जितनी एनर्जी आती है वो खर्च हो जाती है, ये स्टोर्ड नहीं है। जैसे या तो ये रेडिएशंस के फॉर्म में चली गई, या तो आपके जो है इवापोरेट होके चला गया, या वहां से जो है आपके दूसरे जो प्रोसेसेस में कंडेंसेशन में खर्च हो गया, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में खर्च हो गया, साइक्लोन या विंड के मूवमेंट में खर्च हो गया। तो एटमॉस्फेयर इज जनरली इन द कंडीशंस ऑफ द नेट रेडिएशन, बट इन डिफिसिट कंडीशंस। और उसमें उन्होंने अमाउंट बताया है कि 60 दैट इज द यूनिट लांजलेस, या दैट इज द यूनिट ऑफ द हीट। इस रेट से जो है हीट का आपका रिडक्शन है। जी। तो टुमारो आई विल डिस्कस द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। या प्लीज आस्क। जी। फोर्थ लॉ ऑफ, उसमें ये है। अच्छा ये स्नेल्स लॉ कह रहे हैं क्या? लॉ ऑफ रेडिएशन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, T⁴ जो साइज ऑफ वेवलेंथ है। ये टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, the size of the wavelength is inversely proportional to the absolute temperature of the substance, that is T⁴. E is proportional to the T⁴. That is called as the size of जो wavelength का size है, वो जैसे अगर बहुत हॉटर बॉडी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T⁴ के ऊपर ये निकालते हैं कि जिसका उसका टेम्परेचर है उसका T into T into T into T, that is the 4 times आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर कर, उसके लिहाज से उसका वेवलेंथ का जो उसकी एनर्जी की जो साइज होगी वो हो। दूसरा एक है कि स्कैटरिंग में जैसे जो पार्टिकल्स है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स अगर छोटा छोटा है बहुत ज्यादा, तो वो स्कैटर करेगा इनविजिबल पार्ट में।
अगर उसकी साइज पार्टिकल का, डस्ट पार्टिकल्स जो स्कैटरिंग करते हैं, अगर उनकी साइज अगर बड़ी होगी तो ये डिफ्यूजन या डे लाइट के फॉर्म में वो हमें दिखता है। तो ये उसका जो वेवलेंथ का जो साइज है वो एब्सोल्यूट जो इसका जो साइज है, मिनिमम जो पार्टिकल का, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह का साइज है, उससे इसका रिलेशन है। एंड आई विल सी फर्दर about what are the other laws. Snell's law is there, Huygens wavelength law is there. That is related to the light section, that is related to the physics part. However, I will also discuss in somewhere else. Okay, thank you so much. And please be attentive. सारे लोगों से ये कह दीजिए कि भाई वो attention के साथ रहें. I request you, every student, please be attentive about your syllabus, about your reading list, about your list of the lectures. एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं जो है समझने में दिक्कत आती है तो प्लीज आप सवाल भी पूछिए ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अतीक और सिर्फ सूरज और यही सब बच्चे से ही सवाल पूछेंगे। आप जहां ना समझ में आए, आई रिक्वेस्ट ईच स्टूडेंट प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अभी आप कह रहे हैं कि सर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछते सवाल उसी वक्त पूछते, उस लेक्चर में ही पूछते कि सर ये नहीं समझ में आ रहा बताइए, या कभी भी पूछते आप। तो आज तक आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं और जो है मेरी ड्यूटी है समझाना, समझाने का ड्यूटी मेरा है। जैसे भी